নমস্কার সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, 15ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লা থেকে দেশের যুবকদের জন্য নতুন একটি প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের লক্ষ লক্ষ যুবক উপকৃত হবে এবং এই প্রকল্প থেকে বছরে এককালীন 30,000 টাকা পর্যন্ত পাওয়া যাবে এবং 6 মাস পর 15,000 টাকা দেবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনি কিভাবে এই প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করবেন, আপনি কোন ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করবেন, কারা এই প্রকল্পের জন্য আবেদনের যোগ্য হবে, কারা এই প্রকল্পের জন্য আবেদনের অযোগ্য হবে, কারা এই প্রকল্প আবেদন করতে পারবে, কারা পারবে না, সমস্ত কিছু আপডেট তুলে ধরবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। হ্যাঁ বন্ধুরা, অবশ্যই আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হন তবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এরকম নতুন নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য। হ্যাঁ বন্ধুরা, তাহলে চলুন শুরু করা যাক। 15,000 টাকা দেবে সরকার। কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন? প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা। আপনি প্রথমবার কোনো জায়গায় চাকরি করলে পেতে পারবেন সরকারের 15,000 টাকা। সেক্ষেত্রে সুবিধা পেতে আপনাকে করতে হবে কিছু কাজ। 15ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লা থেকে দেশের যুবকদের জন্য নতুন প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা চালু করার ঘোষণা করেন। এই যোজনার আওতায় প্রথমবারের মতো কর্মরত যুবকদের সরকার ইনসেনটিভ দেবে। এই যোজনার মাধ্যমে সরকার যুবকদের 15,000 টাকা দেবে। 18ই আগস্ট সোমবার সরকার এই যোজনার পোর্টালও চালু করেছেন। এখন তরুণদের মনে প্রশ্ন উঠেছে, তারা কিভাবে এই পোর্টালের মাধ্যমে এই যোজনার সুবিধা পেতে রেজিস্ট্রেশন পেতে পারবেন। ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনায় আওতায় যুবকদের 15,000 টাকা দেবে। এর জন্য সোমবার অফিসিয়াল পোর্টালও চালু করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো কাজ করা যুবকরা এই পোর্টালে গিয়ে নিজেদের রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন, কিন্তু এর জন্য তাদের প্রথমে তাদের ইউএএন জেনারেট করতে হবে, তাও উমাং অ্যাপে ফেস অথেন্টিকেশনের মাধ্যমে। আপনাকে জানিয়ে রাখি যে প্রথমবার কাজ করা যুবকেরা ইউএএন জেনারেট হওয়ার পর কোম্পানি তাদের আরও তথ্য এই স্কিমে এন্ট্রি করবে, যার জন্য কোম্পানি অফিসিয়াল পোর্টালে গিয়ে এই কাজটি করতে পারবে। ভারত সরকারের শুরু করা এই প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত যোজনার আওতায় কিছু নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে। যারা এই নিয়মগুলি মেনে চলে তারাই কেবল এই স্কিমের সুবিধা পেতে পারবেন। স্কিমের সুবিধা পেতে 1লা আগস্ট থেকে 2025 এর পরে যুবকদের চাকরি শুরু করা প্রয়োজন। তার আগে কর্মরত যুবকরা এই প্রকল্পের সুবিধা কিন্তু পাবে না। হ্যাঁ বন্ধুরা, তাহলে আপনি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন, যারা 1ই আগস্ট থেকে 1ই আগস্ট 2025 সালের পরে যে সমস্ত যুবকরা কোম্পানির চাকরি করবে তারা অবশ্যই এই বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার প্রকল্পের আওতায় আসবেন এবং 1ই আগস্ট 2025 সালের আগে যে সমস্ত যুবক কোম্পানির কর্মরত তারা কিন্তু এই যোজনার আওতায় আসবে না। এর সঙ্গে আমরা আপনাকে জানিয়ে রাখি যে যদি কোনো যুবক 5 মাস পরে চাকরি ছেড়ে দেন তাহলে তিনি এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে, কারণ আর্থিক ভাতার প্রথম কিস্তি দেওয়া হবে 6 মাস পর এবং পরে সেটা দেওয়া হবে 1 বছর পর, অর্থাৎ 12 মাস পর দ্বিতীয় কিস্তি পাঠানো হবে। তাই প্রকল্পের এই নিয়মগুলি জানা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হ্যাঁ বন্ধুরা, खोज का अभियान चल रहा है और हम क्रिटिकल मिनरल में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्पेस सेक्टर का कमाल तो हर देशवासी देख रहा, गर्व से भर जा रहा। और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भारत भी आ रहे हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों स्पेस में जो रिफॉर्म किए गए, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मेरे देश के 300 से ज्यादा
स्टार्टअप्स आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उन 300 स्टार्टअप में हजारों नौजवान पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हैं। ये है मेरे देश के नौजवानों की ताकत और ये है हमारे देश के नौजवानों के प्रति विश्वास। मेरे प्यारे देशवासियों, 140 करोड़ भारतवासी 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं। इस संकल्प की पूर्ति के लिए भारत आज हर सेक्टर में आधुनिक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है और आधुनिक इकोसिस्टम हर क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम फार्मा ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। वैक्सीन में हम नए नए विक्रम स्थापित करते हैं, लेकिन क्या समय की मांग नहीं है? हम रिसर्च और डेवलपमेंट में और ताकत लगाएं, हमारे अपने पेटेंट हो, हमारी अपनी बनाई हुई मानव जाति के कल्याण की सस्ते से सस्ती और सबसे कारगर नई नई दवाइयों की शोध हो, हर संकट में साइड इफेक्ट के बिना मानव जाति के कल्याण में काम आए। बायो 3 पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई है। मैं देश के नौजवानों को कहता हूं, आइए बायो 3 पॉलिसी का अध्ययन करके अब कदम उठाइए। देश का भाग्य बदलना है, आपका सहयोग चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज आईटी का युग है, डेटा की ताकत है। क्या समय की मांग नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के साइबर सुरक्षा तक, डीप टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी हो, जिस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय कराए। साथियों, आज दुनिया में सोशल मीडिया का हो, बाकी प्लेटफॉर्म का हो, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। दुनिया ने हमने दिखा दिया है, यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से करता है। इसका मतलब की ताकत है। क्रिएटिव वर्ल्ड हो, सोशल मीडिया हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे, क्यों भारत का धन बाहर जाए? और मुझे आपके सामर्थ्य पर भरोसा है। मेरे प्यारे देशवासी, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में हम डिपेंडेंट हैं, वैसा ही देश का दुर्भाग्य है कि फर्टिलाइजर, उसमें भी हमें दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता है। मेरे देश के किसान भी फर्टिलाइजर का सही उपयोग कर करके धरती माता की सेवा कर सकते हैं।
अनाप शनाप उपयोग से भी धरती मां को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, देश के उद्योग जगत को कहना चाहता हूं, देश के प्राइवेट सेक्टर को कहना चाहता हूं, आइए हम फर्टिलाइजर के भंडार भर दें, हम नए नए तौर तरीके खोजें और भारत की आवश्यकता के अनुसार हम अपना फर्टिलाइजर तैयार करें। हम औरों पर निर्भर न रहे। साथियों, आने वाला युग ईवी का है। अब ईवी बैटरी क्या हम नहीं बनाएंगे? हम निर्भर रहेंगे? सोलर पैनल की बात हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं वो हमारी अपनी होनी चाहिए। साथियों, मैं ये इसलिए कहने की हिम्मत करता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे देश के नौजवानों के सामर्थ्य पर भरोसा है। और भरोसा सिर्फ वो मेरे देश के नौजवान है इतने मात्र से नहीं है। कोविड के समय हम बहुत सारी चीजों पर निर्भर थे। तो मेरे देश के नौजवानों को कहा गया कि वैक्सीन हमारी अपनी चाहिए, देश ने करके दिखाया। कोविन प्लेटफॉर्म हमारा अपना होना चाहिए, देश ने करके दिखाया। करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने का काम हमने किया है। वही स्पिरिट, वही जज्बा हमें जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना सब कुछ देना है। अपना जो बेस्ट है वो हमें दे करके रहना है। साथियों, पिछले 11 साल में एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता को बहुत बड़ी ताकत मिली। आज लाखों स्टार्टअप्स टियर 2, टियर 3 सिटी में देश की अर्थशक्ति को, देश के इनोवेशन को ताकत दे रहे हैं। उसी प्रकार से मुद्रा योजना से हमारे देश के करोड़ों नौजवान, उसमें भी हमारी बेटियां, करोड़ों करोड़ों लोग मुद्रा से लोन लेकर के अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं। खुद तो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, लेकिन औरों को भी पैरों पर खड़े रहने की ताकत देते हैं। वे भी एक प्रकार से हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दे रही है। मेरे साथियों, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप किसी का ध्यान नहीं था। पिछले 10 साल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कमाल करके दिखाया। आज उनके प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में जाने लगे हैं। लाखों करोड़ों का कारोबार हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पर है। मैंने एक बार मन की बात में खिलौने की बात कही थी। हम करोड़ों करोड़ रुपए के खिलौने विदेश से लाते थे। मैंने ऐसे ही मन की बात में कहा, करे मेरे देश के नौजवानों, ऐसा भी करेंगे क्या? किलो भी बाहर जाएंगे। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा देश खिलौने एक्सपोर्ट करने लग गया है। यानी देश के सामर्थ्य को हर प्रकार के अवसर मिले, हर रुकावटों से मुक्ति मिले, उसको सर्वाधिक करने के लिए प्रेरित किया जाए। देश कर सकता है। मैं देश के युवाओं से कहता हूं, आइए आप इनोवेटिव आइडियाज लेकर के, आपके आइडियाज को मरने मत देना दोस्त। आज का आपका आइडिया